Hello, students, and welcome in the online session of Class 6 Science, Chapter 7 Getting to Know the Plants. In the previous video session, we have discussed about the plants and the different types of plants. So, you have studied about herbs, shrubs, trees, climbers, and creepers. Now, today is the second video of the lesson, and we are going to see the different types of stems of the plants, then the leaf and its structure, and some of the activities of your book we will discuss. So, let's start first with the term stem. So, let us first find out what is stem. So, stem is the part of the plant that is attached to the roots and which bear the leaves, branches, fruits, and flowers on it. So, in the diagram, also, you can see that this part of the plant is called the stem. So, stem is that part which is attached to the roots and which has branches, leaves, fruits, and flowers present on them. स्टूडेंट्स स्टेम वो पार्ट होता है जो कि रूट्स को अटैच होता है ओके यू ऑल नो दैट रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड ओके एज यू कैन सी हियर these are the roots. So stem is that part which is attached to the roots from the lower side and which has branches on the upper part, and these branches have leaves, fruits, and flowers present on them. So that part is called the stem. Okay. Now what is the function of the stem? Okay. Stem क्या करता है? So stem helps in the upward movement of the water from roots to the tip of the plant's leaves and other parts of the plant. Now you all know that these roots which are present under the soil, they absorb the water from the soil. Okay, ये roots क्या करती हैं? ये water को absorb करती हैं. जैसे ही हम पानी डालते हैं पेड़ में, ये रूट्स क्या करती हैं? पानी को एब्जॉर्ब करती हैं. अब ये जो वाटर यहाँ एब्जॉर्ब हुआ है, ये वाटर पूरे प्लांट के बॉडी तक पहुंचना चाहिए. So now who will do this work? So this stem will help in the transport of water from roots to the branches and the tip of all the leaves. ठीक है, पानी यहाँ से स्टेम से होता हुआ सारी ब्रांचेस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सारी लीव्स के पास भी पहुँचता है. So what is the function of the stem? So stem helps in the upward movement of water. Water जो है वो बिल्कुल up direction में move करता है. Never the water will come down. कभी भी पानी ऊपर से नीचे की ओर नहीं आता है. नीचे से roots से it will move up. And this is the function of the stem. So stem helps in the movement of the water from roots to the tip of the plant, leaves, and other parts of the plant. Now, let's move on to the next slide and try to understand one of the activity. So, what we have to do in this activity, students, take a glass of water and add red or blue ink to the water. आपको क्या करना है? आपको ग्लास में इस तरह के कांच के ग्लासेस में आपको पानी लेना है, उसमें कलर ऐड करना है. Okay, you can add any color of your choice, red color, dark colors, which can be easily seen. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ स्टेम एंड कट इट्स बेस एंड कीप इट इन वाटर. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको एक स्टेम का पीस कट करना है एंड देन यू हैव टू कीप दैट स्टेम इन दिस कलर्ड वाटर. ठीक है. आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम. सो थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा कि ये जो कलर्ड वाटर है ये यहाँ से इस तरह से ऊपर मूव करता हुआ आपको दिखेगा. Why we have taken colored water? So that it can be, its color can be easily seen. Okay. So आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ लीव्स पे हल्का हल्का रेड कलर दिख रहा है, राइट. और यहाँ स्टेम पे आपको देखो हल्का हल्का ब्लू शेड भी नजर आ रहा है. सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप इन स्टेम्स को बहुत देर तक इन कलर्ड वाटर में रखोगे, सो ये जो स्टेम है, दिस स्टेम विल हेल्प द वाटर टू मूव अपवर्ड. सो इस स्टेम से पानी क्या होगा? नीचे से ऊपर की ओर जाएगा. एंड दिस कलर्ड वाटर यू कैन सी इन द स्टेम एज वेल एज इन द लीव्स ऑल्सो. Okay, so from this activity we can understood that water and minerals which are absorbed from the roots, they move in the upward direction towards the leaves, towards the branches, towards the flowers and other parts of the plant. ठीक है. तो स्टेम जो है वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है.
Fine, this is the function of the stem. And I hope what is stem is clear to you all. Okay, it is that part which is connected to the roots from the lower side and to the branches on the upper side. Now let's move on to the next topic, that is leaf. ठीक है, लीफ मतलब पत्ते. एंड आपको पता है कि जनरली लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लीफ का कलर जो होता है वो येलो, रेड, बहुत सारे डिफरेंट शेड्स भी आपको मिलते हैं, बट जनरली ऑल द प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड लीव्स होती हैं. ठीक है, सो लीव्स जो होती हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द ब्रांचेस. लीव्स जो हैं वो ब्रांचेस पे प्रेजेंट होती हैं एंड लीव्स आर ऑफ ग्रीन कलर. ओके, एंड दिस ग्रीन कलर इज ड्यू टू, आई थिंक ये सबको पता है या आपने पढ़ा होगा, नहीं तो यू मस्ट लर्न दिस, दैट दिस ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. ठीक है, इन ये जो लीव्स होती हैं इनके अंदर एक ग्रीन कलर का लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको पिगमेंट, मतलब ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को पिगमेंट बोलते हैं. तो वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल. ओके, सो व्हाट यू कैन से दैट दिस क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स. और इस ग्रीन कलर पिगमेंट की वजह से ही ये जो लीव्स होती हैं ये ग्रीन कलर की होती हैं. ओके, so what we concluded here, that leaves are of green color due to the presence of green color pigment in them which is called chlorophyll. Okay, so all the green leaves have this green color pigment which is chlorophyll. Now leaves are of various shapes, sizes and colors. ठीक है, leaves आपको बहुत सारे shapes, अलग अलग size और अलग अलग color में मिलती हैं. Now the next question comes that how the leaves are attached to the stem. लीव्स जो हैं वो स्टेम को या ब्रांचेस को कैसे अटैच्ड होती हैं. ठीक है, सो यू विल सी दिस डायग्राम एज आई विल एक्सप्लेन यू दैट द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल. राइट, यहाँ पे देखो आपको पिटियोल बहुत क्लियरली डायग्राम में दिख रहा है. दिस पार्ट, राइट, दिस पार्ट, ये पूरी लीफ है, ये लीफ है और ये देखिए इस ब्रांच को अटैच्ड है. तो ये जो पार्ट है जो लीफ को ब्रांच से अटैच करता है दैट पार्ट इज कॉल्ड पीटियोल. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीटियोल. तो ये जो छोटा सा स्टॉक है, ठीक है, जिससे कि ये लीफ ब्रांच को अटैच्ड हो रही है, इस पार्ट को हम बोलते हैं पीटियोल. सो द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम, दैट पार्ट विच अटैच द लीफ टू द स्टेम इज कॉल्ड पीटियोल. ओके, then next is the broad green part of the leaf is called lamina. ये जो आपको पूरा इतना ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, देखो ये जो पूरा लीफ का ये ब्रॉड पार्ट है, वो ऐसा फ्लैट सा पूरा ब्रॉड पार्ट ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, दिस पार्ट इज कॉल्ड लेमिना. ओके, इस पूरे ब्रॉड चौड़े से इस पार्ट को, पूरा लीफ का जो ये सरफेस है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेमिना. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीफ ब्लेड समटाइम्स. ठीक है, ब्लेड कैसा होता है, ऐसा फ्लैट होता है. तो ये जो फ्लैट और ब्रॉड सा पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड लेमिना पार्ट. राइट, सो आपको ये दो टर्म्स आई थिंक अभी लर्न हो गई होंगी. द पार्ट ऑफ द लीफ विच अटैच इट टू द स्टेम इज कॉल्ड पीटियोल and the broad flat green color part of the leaf is called the lamina. Okay, now let's move on to the next slide and see the different parts of the leaf. Okay, हम अभी leaf के parts पढ़ रहे हैं, एक आपने petiole पढ़ा, एक आपने lamina part पढ़ा. Now next जो हमें पढ़ना है that is the veins. ठीक है, so the lines on the leaf they are called veins. leaf पे बहुत सारी lines नज़र आती हैं. ठीक है, अगर आप एक leaf को पकड़ोगे या फिर आप देखो यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि इस लेमिना पार्ट पे बहुत सारी ऐसी ये आपको इस तरह से लाइंस नज़र आती हैं. राइट, और बहुत सारी छोटी 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 भी नज़र आती हैं. सो ये सारी जो लाइंस नज़र आती हैं लीव्स पे दे आर कॉल्ड द वेन्स. ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेन्स. अब ये जो आप देखोगे कि सेंटर में एक बहुत ही मोटी सी थिक सी वेन होती है. ठीक है, तो ये जो सेंटर में मोटी सी होती है दैट इज कॉल्ड द मिड रिब. ठीक है, इसको मिड रिब बोलते हैं. देखो इस वाले में बिल्कुल क्लियरली, इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली दिखा रखा है, ये है मिड रिब. ओके, ये जो सेंटर में ब्रॉड सी जा रही है दिस वन, दिस इज कॉल्ड द मिड रिब. ओके, या मेन वेन भी इसको बोलते हैं. Then the design which is made by the veins in a leaf is called the leaf venation. अभी आप देखोगे कि यहाँ पे लीव्स की ये जो साइड वाली जो वेन्स हैं, ठीक है, जो कि एक डिज़ाइन, एक पैटर्न सा बनाती हैं लेमिना पे, इनको हम बोलते हैं वेन्स.
जो सेंटर वाली है दिस इज कॉल्ड द मिड रिब। ओके, याद रखोगे आप, जो सेंटर में एक थिक सी वेन होती है उसको मिड रिब बोलते हैं, और जो साइड्स में पतली पतली हैं दे आर कॉल्ड द वेन्स। अब ये जो वेन्स होती है ना, दे फॉर्म अ पैटर्न, दे फॉर्म अ डिजाइन ऑन द लीफ, और इस डिजाइन को हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। Okay, leaf venation. So the design which is made by the veins on the leaf is called the leaf venation. देखो आप यहाँ पे देखोगे एक अच्छा सा डिजाइन बना है, यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन बना है। So this design which is made by the veins on the leaf is called the leaf venation. ठीक है? If this design is net-like on both the sides of the midrib, then the venation is called reticulate. Okay. अब आप ये दो डायग्राम्स क्लियरली देखोगे, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये वाला, इसमें आप देखोगे कि मिड रिब के दोनों साइड में एक नेटवर्क जैसा बन रहा है। ठीक है, मिड रिब से बहुत सारी स्मॉल स्मॉल वेन्स जो हैं इस तरीके से ये निकल रही हैं। सो ये जो डिज़ाइन होता है जिसमें मिड रिब से बहुत सारी वेन्स साइड में निकलती हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, सो इस डिज़ाइन को हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे? रेटिक्यूलेट वेनेशन। और जो दूसरा है जिसमें कि आपको वेन्स ना पैरेलल दिख रही हैं, देखो ये एक मिडरिब है आप, और ये जो वेन्स है ना ये इस मिडरिब को इस तरीके से पैरेलली जा रही हैं, दे आर नॉट मेकिंग नेटवर्क, ये सब ऐसे पैरेलल जा रही है। या फिर सपोज आपका ये लीफ है और ये आपका मिडरिब है सपोज, तो हो सकता है ये इस तरीके से भी पैरेलल हों ऐसे। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट हों। तो ये वाली जो डिज़ाइन होती है इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, जिसमें जो साइड की वेन्स पैरेलल नज़र आती हैं तो उसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ओके, जिसमें साइड में इस तरह से जाती हैं नेटवर्क बनता है वो रेटिकुलेट वेनेशन, और जिसमें साइड वाली वेन्स पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट पैरेलल भी हो सकती हैं या इस तरीके से भी पैरेलल हो सकती है, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। ओके, सो लीफ पे दो तरह का डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है, डिज़ाइन को हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। और ये जो लीफ वेनेशन है ये दो तरह का हो सकता है, एक है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मीन्स एक मिड सेंट्रल मिड रिब से इस तरह से साइड में वेन्स जाएंगी और ये नेटवर्क बनाएंगी। ठीक है, वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन। और ऐसा डिज़ाइन जिसमें साइड वाली जो वेन्स हैं वो पैरेलल हों इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी हो सकती है पैरेलल, देन दैट डिज़ाइन इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन। ओके, आई थिंक बोथ द डिजाइंस आर क्लियर टू यू ऑल। लेमिना पार्ट भी आपको क्लियर है, जो ब्रॉड पार्ट होता है फ्लैट वाला ये पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? लेमिना। जो स्टॉक लीफ को स्टेम से अटैच करता है उसको हम पिटियोल बोलते हैं, राइट। और दो तरह की डिजाइंस हमको लीफ पे देखने को मिलती है, एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, प्लांट के लीव्स में से जब पानी वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लाइक आवर बॉडी ऑल्सो सिक्रीट स्वेट, हमारी बॉडी से भी पानी बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीना आता है हमें। उसी तरह से प्लांट्स में जो लीव्स है, लीव्स में से वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इन द डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी, here it is written water evaporates from the leaf surface. ओके, तो जब पानी इवेपोरेट हो जाता है लीफ की सरफेस पे से, वेपर्स बन के निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, सो प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट्स जो है बहुत सारा पानी जो है ट्रांसपिरेशन के मेथड से एयर में छोड़ते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। एवरी प्लांट डज द ट्रांसपिरेशन, हर प्लांट के लीफ में इस तरह से पानी जो है वेपर बन के रिलीज होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फाइन। सो वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा प्लांट की बॉडी में इस तरीके से, देन स्टेम विल हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, और पानी जो है वो प्लांट यूज करेगा, और एक्स्ट्रा पानी जो है वो लीफ की सरफेस से वेपर बन के जो है वो निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ओके, नाउ लेट्स सी वन ऑफ द एक्टिविटी। नाउ यू सी वी विल रिक्वायर अ हर्ब, हमें एक प्लांट चाहिए इस तरह से। आपने क्या किया, दो प्लांट्स ले लिए, और दोनों प्लांट्स में से एक प्लांट के ऊपर हमने क्या किया, इस तरह से कैरी बैग, पॉलिथीन बैग लगा लिया। फाइन।
सो एक्टिविटी में यू नीड अ प्लांट, और उस प्लांट पे आपने इस तरीके से एक क्या लगा लिया है, पॉलिथीन का बैग लगा दिया है उसके ऊपर, ओके, और उसको थ्रेड से इस तरह से बांध दिया है। नाउ यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। बिल्कुल हेल्दी सा प्लांट लेना है आपको, और उसके ऊपर इस तरह से पॉलिथीन बैग लगा के उसको टाई कर देना है। नाउ एनक्लोज द लीफी ब्रांच ऑफ अ प्लांट इन द पॉलिथीन कवर एंड टाई इट्स माउथ। इस तरह से हमने बंद कर दिया। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलिथीन कवर एंड कीप इट। अब एक आप क्या करोगे, दूसरा एक ऑल्सो कैरी बैग ले लोगे जिसमें प्लांट नहीं है, उसको इसी बस ऐसे ही टाई करके आप रख दोगे धूप में, और इस प्लांट के ऊपर भी इस तरह से पॉलिथीन बैग लगा के धूप में रख दोगे, और एक आपने खाली पॉलिथीन बैग भी इस तरह से टाई करके धूप में रख दिया है, राइट, सन में रख दिया है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व फॉर फ्यू आवर्स। थोड़े घंटे आपको वेट करना है। अब आप थोड़े घंटे 2-3 घंटों के बाद देखोगे कि ये जो पॉलिथीन बैग है जिसमें कि प्लांट अंदर से कवर्ड है, वहाँ पे आपको इस तरह से छोटे-छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, राइट? और जबकि ये जो खाली वाला एम्प्टी जो पॉलिथीन बैग है, इसमें आपको कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएँगे, नो वाटर ड्रॉपलेट्स हियर। यहाँ पे आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। तो फ्रॉम वेयर दीज वाटर ड्रॉपलेट्स हैव कम, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, ठीक है? तो आपको पता है कि प्लांट है, प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से, वाटर है लीव्स में, तो ये लीव्स में से वाटर जो है वो इवेपोरेट होके बाहर आता है। अब ये जो वाटर वेपर है, जब ये पॉलिथीन बैग से टकराएगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है? मीन्स ये जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है, लीव्स से आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है, लीव्स में से वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है, और वो वाटर पॉलिथीन बैग से टकरा के वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट प्लांट्स डू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, वाटर लूज द plants lose the water in the form of vapors by the process of transpiration। ठीक है, सो ये एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है। देखो ये यहाँ पे एक और डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है कि ये देखो, ये इस तरह से जब हम कैरी बैग बांध देते हैं प्लांट के ऊपर, तो आप देखो इस कैरी बैग पे कितने सारे वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो इससे क्लियरली पता चलता है कि लीव्स में से वाटर जो है वो वेपर बन के बाहर आ रहा है, और वो वेपर्स जब पॉलिथीन बैग से टकराते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। इसीलिए आपको कैरी बैग पे इस तरह से बहुत सारे क्यों दिख रहे हैं कैरी बैग पे, अगर कैरी बैग नहीं होता तो क्या होता, वो वाटर वेपर्स डायरेक्टली एयर में चले जाते, लेकिन हमने कैरी बैग बांध दिया है तो ऑन द कैरी बैग दे स्ट्राइक एंड दे कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। देखो कितने अच्छे वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। Fine. So this is the process of transpiration. Every leaf, every plant do this process of transpiration. Fine. Now let's move on to the next slide, which is of summary, and let's see what we have done today. So we have seen what is stem. So यहाँ पे आप देखोगे एक और plant का picture लगाया गया है, आप देखोगे this is the stem here, okay? यहाँ पे देखो स्टेम दिखाया गया है, दिस इज द स्टेम, ओके? आपको ये ग्रीन कलर की स्टेम दिख रही है जो रूट से कनेक्टेड है इन द लोअर साइड, एंड ऊपर उस पे ब्रांचेस हैं। देन आपने लीव्स के बारे में पढ़ा कि लीव्स जो होती हैं वो स्टेम पे या ब्रांचेस पे अटैच्ड होती हैं, ठीक है? और जो लीफ होता है वो स्टेम से अटैच्ड होता है विद द पिटियोल। देखो ये छोटा सा स्टॉक जो दिख रहा है, दिस इज पिटियोल। और लीफ का जो ये बड़ा सा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, यस यू आर करेक्ट, राइट, लेमिना बोलते हैं इसको। देन लीव्स पे देखो आपको बहुत सारी डिज़ाइंस दिख रही हैं, तो ये जो डिज़ाइन या जो पैटर्न बना होता है लीफ पे उसको हम वेनेशन बोलते हैं। और दो तरह के लीफ वेनेशंस जो हैं वो दिखते हैं हमें, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। तो देखो ये जो लीव्स है ना, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, राइट, इस तरह से मिडरिब है और मिडरिब के साइड से वेन्स निकल रही हैं। और अगर जो साइड वाली वेन्स हैं अगर वो इस तरीके से पैरेलल हैं, इस तरह से पैरेलल हों या इस तरह से पैरेलल हों, दोनों ही केस में हम उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, राइट? सो वेनेशन इज द डिज़ाइन विच इज सीन ऑन द लीफ लेमिना पे, जो डिज़ाइन दिखती है, वेन्स बनाती हैं, जो ये लाइंस आपको दिख रही हैं, दीज आर वेन्स, और इनका फंक्शन क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, दे ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है? देन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा कि वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और आपने कुछ एक्टिविटीज़ आज इस वीडियो सेशन में देखी थी जो आप करके भी देख सकते हो, ठीक है? आप कलर्ड वाटर में एक स्टेम डाल के रख सकते हो, एंड यू कैन सी फ्लावर भी डाल सकते हो कोई लाइट शेड का, तो आपको दिखेगा कि फ्लावर में वो कलर जो है जाएगा, मीन्स फ्लावर भी वाटर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। देन आप किसी भी एक लीफ पे कैरी बैग बांध के रख के धूप में रखना है आपको, और देखना है क्योंकि धूप में क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो आप सनलाइट में अगर उसको रखते हो तो वो कैरी बैग में आपको अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी। तो यू कैन डू दीज स्मॉल एक्टिविटीज एट होम ऑल्सो।
Fine. I hope all the parts of the stem and all the parts of the leaf are clear to you all. ठीक है, तो ये हम प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, राइट? अभी नेक्स्ट उसमें हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. I hope all the terms are clear to you all. If not, you can ask your doubts anytime. Till then, do read the lesson from your textbook and complete your notebooks also. Fine. So we'll meet in the next session. Till then, all of you stay home and stay safe.